Okay, good morning, dear student, and I hope you are now just free from the hangover of your result. And first of all, I want to say you that don't be pressurized over your result. Don't think much about this. Whatever the result has been come, it may or may not match to your expectation, but it is not the case that you will repent it for a long time. For one day you spend some time with your result, it was okay, but let's move on. Mane ame agoku jiba, we have to go ahead because that was the effort of our past. Now we will focus on our present so that it will give you a better, or it will give us a better result in future. So forget about that. And it is the tendency of life that it has to move. It cannot be stopped at one point. Okay, clear? ଯେମିତି କି କିଛି ପିଲା 95% एक्सपेक्ट କରିଥିବ, ସିଏ 90 ହେଇ ଯାଇଥିବ, କିଛି ପିଲା 90% एक्सपेक्ट କରିଥିବ, 89 ହେଇ ଯାଇଥିବ. It is okay, and it happens in many cases. In most of the cases it happens so don't take it as seriously and just let's move on. आपको आमे जीवा चला. So आमे काना पढ़ा है इसी दिन तक. Till now we have discussed about the Bohr's atomic model, and if you recall to your last class what we have discussed in the last class, we have discussed that at the center nucleus was there, and around this nucleus different circular paths are there, and these circular paths are called orbits or shell or energy levels. These circular paths are called orbits, shells or energy levels. So in an atom, just like infinite number of energy levels or cells are there, and also we have calculated the energy of each cell or orbit. आमे सबु सेल और एनर्जी रो आमे सबु सेल बा ऑर्बिट रो एनर्जी कैलकुलेट करिचु, and from that we have concluded that E1 has less energy than E2, E2 has less energy than E3, E3 has less energy than E4. This is an important point. Means if you will go away from the nucleus, तुम अगर न्यूक्लियस से दूर जाओगे बा तुम जो न्यूक्लियस रो दूर को जदि जीवो ताहेले सेठी कोन हबो तार एनर्जी बढ़ी जीवो. The energy will increase, and we have also discussed energy will increase, but the difference or gap, energy gap will decrease. Means if it is delta E1 and if it is delta E2 and if it is delta E3, meaning is that delta E1 will be greater than delta E2 and will be greater than delta E3. So the cell energy increases but their gap decreases. This point we have also discussed. And here I would like to say that, so whatever the energy of the cell, so if electron is present in that cell, then the electron will have also the same energy. माने E1 cell रो energy जहाँ रहिबो, E3 जो इलेक्ट्रॉन रहिबो, से इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी सेतिकी रहिबो. E2 cell रे जदि गुटे इलेक्ट्रॉन रहिबो, ताले E2 रो एनर्जी संगरे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी समान रहिबो. बुझियला? Are you getting that जो सेल रे इलेक्ट्रॉन रहिबो, से सेल रो एनर्जी सहित इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी भी समान रहिबो. ठीक अछि? Now let's go to the next postulates. What next postulate says? Electron or the orbit in which electron is revolving. जो orbit रे electron revolve करे, सही orbit को सही electron रो ground state कहा जाए. What I am saying? Suppose an electron is revolving in the E1 energy level. गोटे electron से E1 energy level रे revolve करूची. बा हमें कहिबा जे E1 energy level से रहूची बा first orbit रे से रहूची. Then for this electron, this E1 energy level is called its ground state. सही इलेक्ट्रॉन को बा से E1 को सही इलेक्ट्रॉन पाई हमें तारो ग्राउंड स्टेट कहिबा. सो जो स्टेट रे बा जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे ताकू तारो ग्राउंड स्टेट कहा जाए. If an electron is revolving in the second energy level, then this second energy level we call as the ground state of this electron.
माने जो स्टेट रे बा जो ऑर्बिट रे बा जो सेल रे इलेक्ट्रॉन रहिबो सेही सेल रे ताकू तार ग्राउंड स्टेट कुहा जीवो माने जेमति कि मु जो घरे रहूची दैट विल बी माय ग्राउंड होम मोर मोर तीनटा फ्लोर अछि फर्स्ट फ्लोर तो सेकंड फ्लोर गोटे बिल्डिंग रो तीनटा फ्लोर अछि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर मुझे तले रही तले जदि मु रहूची देन द ग्राउंड फ्लोर विल बी माय द और जो फ्लोर रे मु रहूची दैट विल बी माय ग्राउंड फ्लोर मु तले जदि रहूची then that will be my ground floor. If I am staying at the bottom then that will be my ground floor or ground state. तो सेमती जदि गोटे व्यक्ति सेकंड फ्लोर रे रहिला ताले सही व्यक्ति पाई सेकंड फ्लोर हबो तार ग्राउंड फ्लोर माने एई लैंग्वेज अनुसार तुम कहि पार जे सर ग्राउंड तार तळे अछि हम ताको ग्राउंड फ्लोर काई कहला नै माने सेकंड फ्लोर रो व्यक्ति से आसी फर्स्ट फ्लोर रे रहि परिबो नै सेकंड फ्लोर रो व्यक्ति जे कि सेकंड फ्लोर रे ही रहउची तो सेति बे सेकंड फ्लोर को तार ग्राउंड फ्लोर भी कहले चलिबो एटा से जो ग्राउंड माने तळ बोली तुम चिंता नै करो एठी ग्राउंड कहबार मीनिंग हला जो स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रहउची सेही स्टेट को तार ग्राउंड स्टेट कुहा जीवो तो दुटा इलेक्ट्रॉन कहले सब दिस इज ए इलेक्ट्रॉन दिस इज बी इलेक्ट्रॉन so another electron is C मु ना देछि इलेक्ट्रॉन हमको ना देछि A B C आकर so A इलेक्ट्रॉन रो ग्राउंड स्टेट कोन हबो E1 B इलेक्ट्रॉन रो ग्राउंड स्टेट कोन हबो E2 C इलेक्ट्रॉन रो ग्राउंड स्टेट कोन हबो E3 एति की बुझी हला समस्तनकर क्लियर so what is the meaning of this ground state the ground state meaning is that in the ground state the electron has minimum energy से ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी सबुथु मिनिमम रहिबो माने ताठो कम एनर्जी हे परिबो नाही माने बी इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी E2 सहित समान रहबो ठीक अछि तो बी इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी आ E2 रो कम होबो नाही बुझी हला माने सपोज यार वैल्यू हला 50 किलो जूल यार वैल्यू हला 100 किलो जूल आ यार वैल्यू हला सपोज 180 किलो जूल E3 रो माने ये जो ई बी इलेक्ट्रॉन जोटा रहिला बी इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी केते हला 100 किलो जूल बिकॉज़ से E2 एनर्जी लेवल रे अछि आ सेही 100 किलो जूल तार हबो मिनिमम एनर्जी माने कोनोसी भी केस रे से बी इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी 100 रो कम हबो नाही सेमती सी इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी कोनोसी भी केस रे 180 किलो जूल रो अधिका हबो नाही सॉरी 180 किलो जूल रो कम हबो नाही मिनिमम माने ताठो कम हबो नाही तो ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी सबुठारु कम रहे माने रहिला ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी सबुथिरु कम रहिबो बा जति कि भी तुम तार एनर्जी आ ताठु कम हे परिबो नाही एई इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी बी इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी 100 रु कम हे परिबो नाही सेंति ए इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी 50 किलो जूल रु कम हे परिबो नाही हां एबे तुम क्वेश्चन पचारि पारो सर अधिका हे परिबो कि हमें आगु को चिंता करिबा but till the time तुम ground state रो meaning कोन बुझिलो in the ground state the electron has minimum energy अब मने रखि तो केमिस्ट्री रे सब बेले energy is inversely proportional to stability energy is inversely proportional to stability inversely proportional रो माने काना inversely proportional रो माने हला energy यदि अधिका हबो stability कम हबो और एनर्जी जदि कम हबो स्टेबिलिटी अधिका हबो ताकू हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोली कहू तो जेहेतु ग्राउंड स्टेट रे तार एनर्जी मिनिमम रहिला तो सेति पय हम कहिबा सही ग्राउंड स्टेट रे तार स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहिबो सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देन व्हाट विल बी इट्स आंसर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी This is the meaning of ground state of an electron. Say ground state रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी मिनिमम रहे आउ स्टेबिलिटी तारो मैक्सिमम रहे कांसेप्ट क्लियर हलो मु समस्त को ए पॉइंट डिक्टेट कर देबी नोट्स लिखिबा पय व्यस्त होने पहला कांसेप्ट को बुझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट इज the meaning of ground state is in the ground state the electron has minimum energy and maximum stability से ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी मिनिमम रहे एवं स्टेबिलिटी तारो मैक्सिमम रहे बुझियला समस्तनकर क्लियर नाउ लेट्स गो टू द वन मोर थिंग हियर जेते बेला पर्यंत इलेक्ट्रॉन तारो ग्राउंड स्टेट रे अछि बा ता निजर एनर्जी लेवल रे से अछि इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी सो टिल माने इलेक्ट्रॉन जेते बेले पर्यंत निज एनर्जी लेवल रे अछि से ना तो एनर्जी लूज करिवो ना ही से एनर्जी गेन करिवो
ए पॉइंट बुझे एनर्जी से ना तो काठू ग्रहण करिवो ना है एनर्जी से माने एनर्जी लूज करिवो नाही किंबा एनर्जी गेन करिवो नाही जेते बेले पर्यंत से निज एनर्जी लेवल रे अछि माने इलेक्ट्रॉन जेते बेले पर्यंत इवन रे रिवॉल्व करूची से ना तो एनर्जी लूज करिवो ना ही एनर्जी गेन करिवो माने तार एनर्जी से 50 किलो ही रहिवो सो एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज और गेन एनर्जी ऑटोमेटिकली से आपे आपे एनर्जी लूज करी 50 रो कम करि परिबो नाही कि 50 रो 100 करि परिबो नाही so the electron cannot lose or gain its energy automatically माने से निज एनर्जी लेवल रे जन थिबा तार एनर्जी जतकी रहइबो से इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी सेतिकी ही रहइबो so till the time the electron is revolving in its own orbit जहाँ को तारा में ग्राउंड स्टेट कहूचु से ऑर्बिट रे इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी से ना ही एनर्जी लूज करिवो ना ही एनर्जी गेन करिवो ए पॉइंट बुझी पालो निजर ऑर्बिट रे जेतेबेले पर्यंत इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूची से ना ही एनर्जी लूज करिवो और ना ही से एनर्जी गेन करिवो दिस इज ए वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट और सही एनर्जी लेवल के जो एनर्जी लेवल रे इलेक्ट्रॉन दा रिवॉल्व करूची से एनर्जी लेवल को तारो ग्राउंड स्टेट कहगला ग्राउंड स्टेट रे कोन होला तारो से इलेक्ट्रॉन रो मिनिमम एनर्जी रहिला और मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहिला एकी पॉइंट बुझी पालो क्लियर से निज एनर्जी लेवल से जेतेबेले पर्यंत अछि से एनर्जी लॉस करिवो नाही बा एनर्जी गेन करिवो नाही किबा एनर्जी लॉस करिवो नाही एवं सही एनर्जी लेवल को तारो ग्राउंड स्टेट कहा जिवो और सही ग्राउंड स्टेट रे सही इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी सबुथु कम रहिवो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहिवो क्लियर ताकू मु पॉइंट आकर लिखि दोछि देखो टिल द टाइम जेतेबेले पर्यंत till the time the electron is electron तुम लिखि पारिबो एठी पूरा स्पेलिंग आपन लिखि पारिबो मु ई लिखि दुछि the electron is revolving in its own orbit it will neither gain energy gain माने ग्रहण करिबाटा nor lose energy ना है से एनर्जी लूज करिवो क्लियर नेक्स्ट व्हाट अनदर पॉइंट द एनर्जी लेवल or cell जहाँ कहले चलिबो in which electron is revolving मु ई लिखि देसी is revolving it's called its ground state where the electron has minimum energy and maximum stability जो ढारे तार एनर्जी मिनिमम अछि एवं स्टेबिलिटी मैक्सिमम अछि एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी बुझियला जो टाइम पर्यंत till the time the electron is revolving in its own orbit जेते बेले पर्यंत से निज ऑर्बिट रे रिवॉल्व करूची it will neither gain energy ना ही से एनर्जी ग्रहण करिवो nor lose energy माने by itself हम लिखि देले चलिबो by itself माने निजे निजे आउ डिस कॉन्फिडेंट लागिबो से निजे निजे ना ही एनर्जी गेन करिवो ना ही एनर्जी लॉस करिवो आउ जो एनर्जी लेवल से रहूची the level or cell in which the electron is revolving is called its ground state where the electron has maximum energy or minimum energy and maximum stability underline कर देखो maximum stability and minimum energy बुझी होला समस्तन को clear are you getting this point okay are you getting this point now let's go to the next postulates so here I told you that the electron will neither lose energy nor gain energy it is okay but suppose from the outside source बा बाहरु मु से इलेक्ट्रॉन को किछि एनर्जी सप्लाई कली
बाहर किसी एनर्जी सप्लाई कली तार माने काना सपोज मु कौन से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकरी कि हीटेड फिलामेंट थ्रू रु मु ताको एनर्जी देली बा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ताको मु एनर्जी सप्लाई कली मु जदि बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करूची देन व्हाट विल हैपन कारण बाय इटसेल्फ इट कैन नॉट लूज एनर्जी और गेन एनर्जी बट from outer source if we will supply energy to the electron then what will happen the electron will gain energy and it will jump to some higher energy level से तार एनर्जी गेन करिकी तार निज ग्राउंड स्टेट छाड़िकी एबे किसी हायर एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन टा जंप करिवो क्लियर माने जदि आमे बाहरु सेही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करिबा ताहले सही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करिकी ता ग्राउंड स्टेट को छाड़िकी एबे बाकी किछि हायर एनर्जी लेवल जहा रहिले से सेठी को जंप करिवो जेमति कि तो यार 50 किलो जूल रहला एनर्जी थिला E1 रो इलेक्ट्रॉन एनर्जी 50 किलो जूल अछि कि आई सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सोर्स बाहर याकू किछि एनर्जी सप्लाई करली सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन this electron will gain energy and it will jump to some higher energy level and to which higher energy level it will jump it also depends upon what amount of energy it has gained से केते एनर्जी गेन करिछि से डिसाइड करबा से केते हायर एनर्जी लेवल को जीवा किंतु पॉइंट एटा है से एनर्जी गेन करिकी से हायर एनर्जी लेवल को से जीवा केन जगह रु से जीवो से ग्राउंड स्टेट रु हायर एनर्जी लेवल को से जीवो जेंति कि एई इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी हला 50 किलो जूल ताकू यदि आउ 50 किलो जूल एनर्जी दिया जाए ताहले से एक बिकॉज़ E1 और E2 भितरे गैप थिला 50 किलो जूल रो सो एई इलेक्ट्रॉन पाखरे एनर्जी थिला 50 किलो जूल सो एई इलेक्ट्रॉन को यदि आउ 50 किलो जूल एनर्जी दिया जाए देन इट विल एब्जॉर्ब इट एंड इट विल जंप टू द E2 एनर्जी लेवल सो जो इलेक्ट्रॉन रो डाउन स्टेट E1 थिला से इलेक्ट्रॉन रे को इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल को पळे आसीबो E2 एनर्जी लेवल को से पळे आसीबो केते किलो जूल गेन गला परे से 50 किलो जूल गेन गला परे so why he will absorb 50 किलो जूल जंप टू E2 से 50 किलो जूल गेन करी कि काहे कि E3 भी जाई परिबो नाही कारण E3 और E1 भितरे गैप अछि 130 किलो जूल हां यस इफ you will say sir if the electron from E1 energy level if it will gain 130 kilojoule then only it will jump to the E3 kilojoule or E3 energy level so से गैप जति की थिबो से सेति की गैप रो एनर्जी गेन कले ही से तारो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल को से जंप करि पारिबो इमीडिएटली तुम माइंड रे साइंटिफिक क्वेश्चन आसुथिबो सर व्हाट विल हैपन इफ इट विल गेन 70 किलोजूल what will happen if it will gain 45 किलोजूल बा हमें आको यदि 45 किलोजूल दबा ताहले कोन हबो सर आधा जंप करके पळे आसीबो कि यदि आको हमें 1 देन 110 किलोजूल दबा ताहले सर कोन हबो तबे यदि गैप जति की थिबो सेति की गैप रो यदि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया न जाए ताहले से इलेक्ट्रॉन ता एनर्जी गेन करिवो नाही the electron will not gain the energy or the electron will not absorb the energy if it is not equal to the gap से गैप सहित समान हेले ही से एनर्जी गेन करिवो एटा इंपोर्टेंट पॉइंट है एनर्जी गेन करी कि हायर एनर्जी लेवल को जीवो दैट इज ओके but the whatever the energy it is gaining or whatever the energy it is absorbing it must be equal to the energy gap so energy gap सहित समान न होवा जाए से केते बेले भी लोअर रु बा ग्राउंड स्टेट रु हायर एनर्जी लेवल को जीव नाही सो लोअर स्टेट रु हायर बा ग्राउंड स्टेट रु हायर एनर्जी लेवल को जीवा पाई भी ताको निर्दिष्ट परिमाण रो एनर्जी दरकार व्हिच मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी गैप सो आमे जो एनर्जी देला सेही एनर्जी ता से गैप सहित समान हबार जरूरी आए बुझियला सो व्हाटएवर द एनर्जी इट इज गेनिंग इट मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी गैप इफ इट इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी गैप देन इट विल नॉट गेन से गेन करिवो नाही बा से एब्जॉर्ब करिवो नाही एब्जॉर्ब वर्ड भी लगा जाए एब्जॉर्ब करिवो नाही बा गेन करिवो नाही बा रिसीव करिवो नाही बुझियला समस्त को क्लियर ए जो प्रोसेस रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी लेवल चेंज हैला से प्रोसेस को पूरे ट्रांजिशन कहा जाए कोन कहा जाए ट्रांजिशन अब ए चेंज भी को प्रकार माने ट्रांजिशन रो मीनिंग हैला चेंज इन एनर्जी लेवल चेंज इन एनर्जी लेवल को ट्रांजिशन कहा जाए सो एकी एनर्जी लेवल तो चेंज हिची सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन माने इलेक्ट्रॉन रो एठी ट्रांजिशन हैला कहा जीवो एटा की प्रकार रो ट्रांजिशन
ए ट्रांजिशन रे कोन होची लोअर एनर्जी लेवल रु इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल को जाउची लोअर एनर्जी लेवल रु इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल को जाउची आ ए प्रकार रो ट्रांजिशन को और दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड योर एक्साइटेशन। तो एक प्रकार ट्रांजिशन को जो ट्रांजिशन रे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल रु हायर एनर्जी लेवल को जाउची केंती बाय गेनिंग एनर्जी इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। सेही प्रोसेस को एक्साइटेशन कहा जाए कोन कहा जाए ताकू एक्साइटेशन कहा जाए। तो एक्साइटेशन रो मीनिंग कोन होला जते बेले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल रु हायर एनर्जी लेवल को गला सेही टाइम रे ताकू एक्साइटेशन ट्रांजिशन कहा जाए और दैट ट्रांजिशन इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन टेक्स प्लेस बा एक्साइटेशन हला बोले हमें कहि परबा कहार इलेक्ट्रॉन को कोठु नै तर लोअर बा ग्राउंड स्टेट रो किछि गुटे हायर एनर्जी लेवल बुझियला। नाउ लेट्स कंपेयर बोथ द केस। सपोज इन दिस फर्स्ट केस इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल को आसीला फर्स्ट स्टेट को लेवल को आसीला से सेकंड एनर्जी लेवल को आसीला वर्तमान सेकंड एनर्जी लेवल रे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी केते हि जीवो इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी हि जीवो अबे 100 किलो जूल माने जो इलेक्ट्रॉन रो ग्राउंड स्टेट रे जहार एनर्जी 50 किलो जूल थिला एबे तार एनर्जी केते हे गला 100 किलो जूल हे गला माने E2 को इलेक्ट्रॉन पहुंचला पर तार एनर्जी हे गला 100 किलो जूल जदी से E3 को पहुंचबो तार एनर्जी केते हे जीवो तार एनर्जी हे जीवो 180 किलो जूल माने ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी एबे बढ़िला जदी इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी बढ़िला ताले स्टेबिलिटी कोन हबो स्टेबिलिटी कोन कहैतला एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कहैतला माने से जो इलेक्ट्रॉन दा ग्राउंड स्टेट रे जो इलेक्ट्रॉन दा स्टेबल थिला एबे से हायर एनर्जी लेवल को आसिला परे तार स्टेबिलिटी कमी गला एटा बुझी परला समझते तार स्टेबिलिटी कमी गला एठी बिकॉज़ इट इज नाउ इन द हायर एनर्जी लेवल एंड जो स्टेट रे माने एठी देखो E2 रे तार एनर्जी 100 अछि E3 रे तार एनर्जी 180 अछि से कोठारे बेसी अनस्टेबल रहइबो इन व्हिच स्टेट द एनर्जी विल बी मोस्ट अनस्टेबल इन द E3 कारण से E3 माने से आउ टिके एनर्जी एठी पळे आसला सपोज E4 को जाइथांदा तार स्टेबिलिटी आउ कमी जीवो तो E2 और E3 भितरे कोथरे इलेक्ट्रॉन बेसी अनस्टेबल रहइबो E3 रे E2 रे तार टिके कम अनस्टेबल रहइबो सबुथुर बेसी स्टेबल कोथरे इलेक्ट्रॉन रहइबो तार ग्राउंड साइड एठी जोटा E1 अछि क्लियर अब ए जो हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन रे पहुंचिला जोटी इलेक्ट्रॉन रो स्टेबिलिटी कमी वाला सेही हायर एनर्जी लेवल्स मानकू एक्साइटेड स्टेट कहा जाए कोन कहा जाए एक्साइटेड स्टेट। तो जते बेले इलेक्ट्रॉन ता ग्राउंड स्टेट E1 थिला से टाइम रे E2 गुटे तार एक्साइटेड स्टेट हबो E3 गुटे तार एक्साइटेड स्टेट हबो हम नंबरिंग भी करि परबा E2 हबो E1 पाई E2 हबो तार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E3 हबो तार सेकंड एक्साइटेड स्टेट E4 हबो तार थर्ड एक्साइटेड स्टेट बिकॉज़ तार ग्राउंड स्टेट ता होची E1 बुझियला। अब जेहेतु एक्साइटेड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन ता अनस्टेबल अछि सो व्हाट विल हैपन इमीडिएटली इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट से पूरे इमीडिएटली ग्राउंड स्टेट को फेरी आसीबो और जैसे ग्राउंड स्टेट को फेरी आसीबो एनर्जी एबे कोन हबो नाउ द एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस एनर्जी एबे लॉस हबो सो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट रे पहुंची जीवो एनर्जी गेन करी कि इट इज ओके एनर्जी गेन करी कि से एक्साइटेड स्टेट रे पहुंची गला किंतु एक्साइटेड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन ता अनस्टेबल थिबारु से एक्साइटेड स्टेट रु पुणे ग्राउंड स्टेट को फेरिबो आ जते बेले से ग्राउंड स्टेट को फेरिबो सेही टाइम रे से एनर्जी लॉस करिवो पुणे केते लॉस करिवो नाही तार गैप सहित से समान परिमाण रो एनर्जी लॉस करी कि से रिटर्न करिवो एटा इंपोर्टेंट है से लॉस कला बेले भी एनर्जी गैप सहित समान हबा कथा और गेन कला बेले भी एनर्जी गैप सहित समान हबा कथा। तो ए प्रोसेस रे पुणी कोन E2 रे जेतु इलेक्ट्रॉन दा अनस्टेबल थिबो सो इमीडिएटली कोन हो से E2 रु E1 को पळे आसीबो ए केस रे भी से 60 किलो जूल एनर्जी लॉस कला परे ही से E1 को आसी पारिबो क्लियर। नाउ नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस sir if it is in the E3 energy level so it will come directly to E1 or E3 to E2 then E2 to E1 both can happen this can also happen and this can also happen say E3 to E2 आसीकी तापरे E2 to E1 भी आसी पारे सो इलेक्ट्रॉन जते बेले ग्राउंड स्टेट को फेरुची से गोटे स्टेप रे भी आसी पारे आ से गोटे रु अधिका स्टेप रे भी आसी पारे डिपेंड करिवो से केते एनर्जी केते आकारे लॉस करिची से एका संगे जति 130 किलो जूल एनर्जी लॉस करिवो ताहाले से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट को पळे आसीबो
किंतु से यदि 80 कैलोरी लॉस कला तापर 50 कैलोरी लॉस कला ताले ए केस रे से दीटा स्टेप रे रिटर्न करला किंतु एरा इमीडिएट मन रखो ए प्रोसेस रे से एनर्जी लॉस करी कि ही ग्राउंड स्टेट को आसुची तो ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को से एनर्जी गेन करी कि जीवो और एक्साइटेड स्टेट रु से ग्राउंड स्टेट को एनर्जी लॉस करी कि आसीबो और से एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट को फिरला बेले से गोटे स्टेप रे भी आसी पारे किंबा मल्टीपल स्टेप रे भी आसी पारे बा सेवरल स्टेप रे भी आसी पारे से डिपेंड करिवो से केते अमाउंट रो एनर्जी लॉस करिची सो ए जो प्रकार ट्रांजिशन हला ए प्रकार ट्रांजिशन रे कोन हला हायर एनर्जी लेवल रु लोअर एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन रिटर्न करूची तो ए प्रकार ट्रांजिशन जेते बेले से हायर एनर्जी लेवल रु लोअर एनर्जी लेवल को से आसुची से प्रकार ट्रांजिशन को डी एक्साइटेशन कहा जाए कोन कहा जाए देखो डी एक्साइटेशन कहा जाए सो एठी दीटा ट्रांजिशन तुम पढी गला में ट्रांजिशन हमें दो प्रकार में पढिला गोटे होची एक्साइटेशन ट्रांजिशन माने लोअर टू हायर एनर्जी लेवल को एक्साइटेशन कहा जाए और डी एक्साइटेशन माने कोन पढिला डी एक्साइटेशन प्रोसेस रे हायर टू लोअर एनर्जी लेवल हला एक्साइटेशन प्रोसेस रे एनर्जी गेन हला डी एक्साइटेशन प्रोसेस रे एनर्जी लॉस हला ध्यान रखो एक्साइटेशन प्रोसेस रे एनर्जी गेन हला डी एक्साइटेशन प्रोसेस रे एनर्जी लॉस हला आ इटा भी मन रखी तो ट्रांजिशन हवा पय मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग काना बा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट व्हाट इज जो भी एनर्जी दिया गला व्हाटएवर द एनर्जी बा जहां भी एनर्जी इन्वॉल्व हला से लॉस हो किबा गेन हो इट मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी गैप से एनर्जी गैप सहित से एनर्जी टा समान हवा कथा बिकॉज से एनर्जी गेन सेते बेले जाय करिवो जेते बेले बोलु से गैप रे समान हेची बा गैप रे समान न होबो से गेन करिवो नाही सेंति गैप रे समान न होला से लॉस करिवो नाही मध्य सो ट्रांजिशन हेबा पाई गुटे प्राइमरी कंडीशन कोन होला और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए ट्रांजिशन से एक्साइटेशन को डी एक्साइटेशन को कंडीशन हला से एनर्जी गैप सहित ताको मु डेल्टा ई कहि दूची एनर्जी गैप सहित एनर्जी देबाटा समान हेबा कथा और एनर्जी को मुठी h न्यू आकारे लिखिली h न्यू को हम एठी एनर्जी कहबा सो व्हाटएवर द एनर्जी इन्वॉल्व इट मस्ट बी इक्वल टू द गैप ए h कोन एठी h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाए h को कहा जो प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू को कहा जाए एठी फ्रीक्वेंसी बा बारंबारता तमे एटा वेव रे पढितबो तरंग रे पढितबो बारंबारता h और न्यू को जदी मल्टीप्लाई करि दबो तार ताको एनर्जी कहा जाए सो एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन बा से जो रेडिएशन ताको दे रेडिएशन थ्रू तुम जो एनर्जी देइथिबो तार एनर्जी केंती कैलकुलेट करा जिवो से रेडिएशन रो गोटे वेव नेचर थाए और सही वेव नेचर रो फ्रीक्वेंसी कढा जाए एबे से फ्रीक्वेंसी से तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तार से रेडिएशन रो एनर्जी समान ही बा एनर्जी बाहरी हो एबे सही एनर्जी जदी गैप सहित समान हबो ताहले जाई गोटे ट्रांजिशन हबो आ ट्रांजिशन हेबा पाई ए एनर्जी जहाँ भी इन्वॉल्व थिबो से लॉस को हो किबा गेन को हो दैट मस्ट बी इक्वल टू द डेल्टा ई बुझियला एक्चुअली मुडे अंडरस्टैंडिंग में सब बुझाई छी मुई सब तुमको नोट आकर डाकी देबी डोंट वरी प्रथमे कांसेप्ट तक ज्ञान करो व्हाट इज द कांसेप्ट एटा हला जेते बेला पर्यंत इलेक्ट्रॉन निज एनर्जी लेवल रे रहिची इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी और सही एनर्जी लेवल को तार ग्राउंड स्टेट कहा जाए किंतु जदि आमे बाहर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देला देन इट विल गेन एनर्जी एंड इट विल जंप टू द हायर एनर्जी लेवल बुझियला एंड इन द हायर एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन इज not and this process जो से ground state to the high energy level को गला this process is called excitation but and the higher energy levels are called excited state say higher energy levels मानम को excited state कहा जाए but in the excited state the electron is not stable and it will again return to the ground state in the excited state the electron is not stable it will again return to the ground state in one step or in several step माने एका संगरी आसी पारे कि स्टेप बाय स्टेप आसी पारे and this process is called de-excitation ए प्रोसेस को कोना कहा जाए de-excitation कहा जाए बुझियला and what is the condition for any transition to occur the energy involved must be equal to the energy gap कोनोसी भी ट्रांजिशन हेबा पाई जेति की एनर्जी इन्वॉल्व हेबो हेथिबो चाहे लॉस को हो किबा गेन को हो दैट मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी गैप सहित समान हवा जरूरी है बुझियला समस्त पॉइंट बुझियला क्लियर नाउ यस वन मोर क्वेश्चन आई मे पुट हियर बिकॉज़ किसी भी नाको डाउट थाई पारे सो सपोज गोटे एनर्जी E2 एनर्जी लेवल रे अछि इफ इट इज गोटे इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी लेवल रे अछि देन E2 विल बी व्हाट इज E2 will be its ground state. E2 को तारा हमें ground state कहिबा
ताहले इलेक्ट्रॉन कोन E2 ରୁ E1 को जाई परिबो कैन इलेक्ट्रॉन नाउ जदी इलेक्ट्रॉन ता E2 रे अछि से E1 को केबे भी जाई परिबो नाही it will never go to the E1 से E1 को केबे भी जाई परिबो नाही हां से हायर एनर्जी लेवल को जाई परिबो केमती जाई परिबो जदी बाहरु हमें किछि ताको एनर्जी देले सो E2 रो एनर्जी E2 रो इलेक्ट्रॉन ता कोठी को आसी परिबो E2 रो इलेक्ट्रॉन ता E3 को आसी पारे E2 रो इलेक्ट्रॉन E4 को आसी पारे E2 इलेक्ट्रॉन E5 को आसी पारे बाय गेनिंग एनर्जी ये भी केते एनर्जी गेन करिवो तार गैस सहित लिखितो सेति एनर्जी गेन कला परे से ए सब हायर एनर्जी लेवल को आसीबो किंतु हायर एनर्जी लेवल से स्टेबल रहइबो नाही बिकॉज़ इन द दिस हायर एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ी जाइतिबो और ए हायर एनर्जी लेवल्स मानको तार एक्साइटेड स्टेट कहलिबो कोन कहलिबो एक्साइटेड स्टेट कहलिबो सो अगेन से हायर एनर्जी लेवल रु से तार ग्राउंड स्टेट को रिटर्न करिवो एंड दैट मे बी इन वन स्टेट or it may be in more stables one or more state से एनर्जी लूज करके अगेन तार ग्राउंड स्टेट को ही फेलिबो तार आउट तळको से आसी पाइबो नाही बिकॉज़ सेटा तार ग्राउंड स्टेट से एनर्जी इलेक्ट्रॉन रो मिनिमम एनर्जी सेठी रहबो आउ तार एनर्जी कम ही पाइबो नाही तो जतबे E2 ता तार ग्राउंड स्टेट हला तार एक्साइटेड स्टेट ठीक हे गले E3 E4 E5 E3 तार कोन कहलिबो E2 ग्राउंड स्टेट E3 को तार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलिबो E4 को तार सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलिबो E5 को तार थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहलिबो बुझियला एटा भी क्वेश्चन पचारे सपोज मैं कहला एटा एई सब तो कांसेप्ट बुझि गलो याको सब मु नोट आकरे डाकी भी देबी डोंट वरी नाउ सपोज मु कहली गोटे इलेक्ट्रॉन रो ग्राउंड स्टेट होची E4 ताहले इटा तार ग्राउंड E4 हला तार ग्राउंड स्टेट सो व्हाट आर द एक्साइटेड स्टेट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रो एक्साइटेड स्टेट एबी की तार एक्साइटेड स्टेट गुडा कहला की एक्साइटेड स्टेट तार हे गले E5 E6 E7 E8 कितने पर्यंत जाई परिबो E इनफिनिट पर्यंत जाई परिबो क्लियर E5 को तार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलिबो E6 को तार सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलिबो E7 को तार थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहलिबो E8 को तार फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कहलिबो तो बुझियला जे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट रो कांसेप्ट क्लियर मोर क्वेश्चन पे पचार रुची इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रो रेसिस्टेबल रहिबो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट रो रेसिस्टेबल रहिबो ऑब्वियसली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कारण फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रे या कंपैरिजन तार एनर्जी ठीक कम थिबो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोथ इलेक्ट्रॉन सबथु बेसी अनस्टेबल रहिबो ऑब्वियसली थर्ड एक्साइटेड स्टेट रे कारण से एक्साइटेड स्टेट तार एनर्जी सबथु अधिक थिबो एति कि बुझियला समस्त क्लियर ए कांसेप्ट का तो मु ग्राउंड स्टेट कांसेप्ट ऑलरेडी बुझे देछि तो ऑलरेडी डिक्टेट भी कर देछि नाउ लेट्स गो टू दैट एक्साइटेड स्टेट कांसेप्ट अबे जहां पढिली ताको हम नोट्स रे केमति लिखिबा बा पोस्टुलेट्स आकारे केमति लिखिबा क्लियर ए जहां बुझाली ताको एबे मु नोट्स आकारे लिखुछि क्लियर लेट्स सी राइट द नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्लियर द इलेक्ट्रॉन by gaining energy this is the next postulate by gaining energy from outer source बाहर मैं लिखि दोछि ऑटोमेटिकली से एनर्जी गेन करिबो नाही from outer source it will jump to some वो एनर्जी लेवल को जीवो डिपेंड करिवो से केते अमाउंट रो एनर्जी गेन करछि to some higher energy levels clear which are called the excited state of the electron excited state of the electron this transition is called a transition को कोन कहली ट्रांजिशन रो मीनिंग कहि जाय छै ऑलरेडी ट्रांजिशन रो मीनिंग हला ट्रांजिशन रो मीनिंग कोन ट्रांजिशन रो मीनिंग हला चेंज इन एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल को से गला दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एक्साइटेशन कोन कहलिबो देखो एक्साइटेशन कहलिबो तो ई लोअर एनर्जी लेवल में लिखि दोछि to E
हायर एनर्जी लेवल ए प्रोसेस रे एनर्जी गेन हिथिबो क्लियर ए पॉइंट बुझी पालो समझते ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट इट्स कॉल्ड एक्साइटेशन भी लिखि दिथिबो ताको एक्साइटेड स्टेट को भी अंडरलाइन कर दिथिबो क्लियर समस्त बुझी पालो नेक्स्ट पॉइंट रे हम कोन लिखि परिबा बस सही पॉइंट रे आउट भी तळे पैराग्राफ कर लिखि परिबो इन द एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल in the excited state electron is unstable excited state the electron unstable है and hence it will return to ground state कोठी को ग्राउंड स्टेट को से रिटर्न करेगा in one step or in several step गुटे स्टेप रे किंबा several step बुझाई चले this transition is called in one step or in several step by losing energy सेटा भी important point by losing energy this transition is called what कहा जाय ताको it's called de-excitation ए ट्रांजिशन को de-excitation कहा जाय बुझियला हम कोन करबा ई हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल को डी एक्साइटेशन कहा गला दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन अब ए प्रोसेस रे कोन हो एनर्जी लॉस हो आउट प्रोसेस से कोन लिखि देबो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन फॉर एनी ट्रांजिशन टू occur the energy gap must be equal to सॉरी डिस्टर्ब हो गला आगे कोन पर लिख दबा चाहे एक्साइटेशन को हो कि डी एक्साइटेशन को हो फॉर एनी ट्रांजिशन टू occur the energy gap or the energy involved must be equal to the energy difference between two cells or orbit बुझेला टू सेल और ऑर्बिट जहां लिखते चलिए बिटू हम डेल्टा E = h न्यू कहूछु न्यू को भी फ्रीक्वेंसी कहा जाए h को प्लांक कांस्टेंट कहा जाए न्यू को फ्रीक्वेंसी कहा जाए और h को प्लांक कांस्टेंट कहा जाए और एटा मन रखि तो इलेक्ट्रॉन जेतेबेले भी एनर्जी से गेन करिवो से ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म से गेन करिवो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो फ्रीक्वेंसी रहिवो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विषय में सेपरेट वीडियो भी करिवि तो एतिकी रे तमरो पूरा बोर्स मॉडल कंप्लीट हला एटा को ठीक से पढिथिबो ए कांसेप्ट बहुत काम रे आसीबो तुमको आगरे तो हम कहि परिबा with this the Bohr atomic model concluded और सरी गला ठीक अछि एबे नोट्स लिखि दबो थैंक यू।